ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਰੇ 15 ਹੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 61 ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1270 ਈਸਵੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਪਿਤਾ ਦਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਗੋਨਾਬਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਨਰਸੀ ਬਾਮਣੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸੀ ਬਾਮਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਰਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਲੜਕੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੂਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਮਦੇਵ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਮੂਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਰਹੇ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਝੂਠਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਦਰ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾਮਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਗਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, हे ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੰਦਰ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਨਾਗਨਾਥ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਘੁੰਮਿਆ।
शिवरात्रि का दिन सी। बाबा जी अपनी भजन मंडली के नाल उस मंदिर के विच भजन करने लई गए। उत्थे दे पांडे लोगों ने कहा, नीच जाति दे हो, शीबा जाति दे हो, साडा मंदिर भरिष्टिया गया, बुरा भला कहा। इतिहासकार तो इतों तक लिखते हैं भी उन्होंने पांडिया ने बाबा जी को धक्के मारे, तो बाबा जी उतों उठ के मंदिर के पिछले पासे जाके अपनी भजन मंडली के नाल भजन करन लगे और उत्थे बैठ के भगवान को कलमा भी दिता भी मैं तो तेरा नाम जपण लई आया सी, जे मेरे धक्के मराने सी तो शीमे के घर पैदा ही क्यों किया। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उतरा, भगत जना को बिहरा फिर। ज्यों ज्यों बाबा जी ने भजन शुरू किया तो मंदिर का दरवाजा ही बाबा जी वाल घूम गया, जोड़ा कि पहला पूर्व वाल से फिर पश्चिम वाल हो गया। आम तौर पर जोड़े मंदिरों के दरवाजे रखे जाते हैं ये तकरीबन पूर्व वाल रखे जाते हैं। पुराने समय के विच सती पक्ष आदमी मर जाता सी, औरत नूं जिउंदी नूं पूरी चिता दे विच जला दिता जाता सी। बाबा जी सती प्रथा के खिलाफ से। बाबा जी नदी के किनारे भगती से लीन हुए बैठे सी। जदों अख खुली तो एक सुहागन जिन्हें लाल चूड़ा पाया, ब्याह में थोड़े दिन होए, बाबा जी के सामने बैठी तो बाबा जी ने पूछा, दस भाई सुहाग बनती तू किवें आई? वो कहने लगी, बाबा जी मेरे पति सुरगवास हो गए है, उन्होंने संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए है, हुण मेरी बारी भी आ गई। मैं सोचा भी जानी हुई संतां के दर्शन कर दूं। वो कहने लगी, बाबा जी तुसीं मैनूं सुहाग बनती कहा ना। बाबा जी कहने लगे, भाई मरिया हुआ बंदा जिंदा नहीं हो सकता, उन्हें जिन्नी अपनी आयु लिखी है उन्नी भोग के चला गया। इतिहासकार लिखते हैं भी आकाशवाणी हुई, इस लड़की नूं अपने गड़बे के विचों अमृत जल दो। वो राम का नाम लैके अपने पति के अखां के छिट्टे मारे तो पति जिंदा हो गया। बाबा जी ने गड़बे के विचों अमृत जल दिता। उस लड़की ने राम का नाम लेके अपने पति के अखां के छिट्टे मारे तो पति राम राम करदा उठ के खड़ा हो गया। ये जी खबर सी जंगल की अग की तरह सारे इलाके के फैल गई भी नामदेव का बंदे जिंदे करन लगे। बादशाह ने लोग मर गए। बादशाह ने अहलकार कहने, बादशाह नामदेव ने बंदा जिंदा किया, गौ भी जिंदी करूँगा, नामदेव को नामदेव को बुलाया गया। बादशाह कहने लगा, लिया भी नामदेव है, गौ पई है, इन्हू जिंदी कर, नहीं क्या छुरी पई है, इन्हें तेरी गर्दन कर देनी। तो बाबा जी कहने लगे जी ये काम नहीं हुआ, मरिया हुआ बंदा नहीं जिंदा हो। तो साध संगत जी 7.5 घड़ियां का समा दिता गया गौ जिंदी करने वास्ते, ये नहीं तो तेरी गर्दन है छुरी ना कर देनी। समा नेड़े आ गया, गरुड़ से सवार होकर भगवान हाजिर हो गए। भगवान कहने लगे, 10 नामदेव धरती पलटा देना तो गौ जिंदी करनी। तो बाबा जी कहने लगे, धरती नहीं पलटानी, बहुत नुकसान होगा, अपना तो मसला ही होगा। तो साध संगत जी गौ जिंदी हुई, गौ का दुध बच्चे ने चूलिया, वही दुध बादशाह को पिलाया गया।
लेकिन बादशाह का पेट दर्द करने लगे। बहुत इलाज करा लिया, बादशाह का पेट नहीं ठीक होया। तो किसी ने कहा बादशाह नामदेव के चरण पड़ लो। बादशाह नामदेव के चरण नहीं आया। बादशाह ने इनाम दे विच बाबा जी ने एक बिस्तरा दिता। वो बिस्तरा जिहड़ा कि बाबा जी ने रखा नहीं, नदी च रोड़ता। किसी ने जाके मुखबरी की भी बादशाह जिहड़ा बिस्तरा नामदेव नूं दिता है वो तो नदी च रोड़ता। साध संगत जी नामदेव नूं लाया गया, लिया भी साडा बिस्तरा वापस कर दे। साध संगत जी नदी उठी चल गई, एक बिस्तरे की जगह 9 बिस्तरे आए। मैं भाई जेड़ा तेरा हैगा अपना पछाण। दास एक गल आम तौर पर कहना, मेरा ख्याल है किसी गुरुद्वारा साहब नहीं कहना चाहिए। समय की लोड़ है, प्रचार की लोड़ है। अजकल देखने के विच आया, सुनने के विच आया, बुजुर्गों की सेवा नहीं हो रही। 20-25% बच्चे बड़ी मुश्किल नाल होंगे जिहड़े माँ बाप की सेवा करते होंगे। दास नूं लुधियाने बिरध आश्रम जाने का मौका मिला। उत्थे एक बिरध जोड़ा बैठा, तो दास ने पूछा बाबा जी तुहाडा कोई है नहीं? कहते हैं बेटा 2 बेटे हैं, वो 2 साल इतने छड़ गए। मैं क्या तुहानूं मिलन नहीं आते? वो कह लग्या मैं बिजली बोर्ड के LM सीगा जिन्होंने आप लाइनमैन कहते हैं, मैनू पहली तरीक में पेंशन मिलती है, वो 2 तरीक में दोनों आते हैं। कई बार तो पेंशन भी ले जाएंगे। दास वालों 4 लाइना लिखिया गई। जिस घर दे विच मापियां दा सत्कार नहीं, उस घर के नेड़े तेड़े निरंकार नहीं। भुल जाता है जोड़ा मापियां नूं, उस तो घटिया होर कोई परिवार नहीं। किस काम भंडारे, पुण्यदान, गंगा इशनान, जे भुखे बैठे मापियां की सार नहीं। किस काम के बंगले कारां, जे माँ बाप के रहन लई घर बार नहीं। बिरध अवस्था में संभाले मापियां नूं, उस तो वड्डा होर कोई उपकार नहीं। पाल दिता पूरा परिवार मापियां ने, पर मापियां नूं पालण लई कोई तैयार नहीं। अमृत छको।